Good morning, students. Today we will start our first chapter of chemistry, that is chemical equations and reactions. Before starting the chapter, firstly, what do you mean by chemistry? Chemistry is basically the branch of science in which we study composition, properties, and the changes in which matter undergo in different conditions. That is known as chemistry. Or we can simply say that the chemistry is branch of science in which we study completely about matter. ठीक है, मैटर की कंपोजिशन क्या क्या है? कंपोजिशन दैट मीन्स मैटर किसकी सब्सटेंस से मिलके बना है, प्रॉपर्टीज लाइक उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, और अंडर डिफरेंट कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, डिफरेंट कंडीशंस में मैटर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो जिसमें हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करेंगे, दैट इज केमिस्ट्री. So in this chapter we basically discussed about the changes of matter. So how many type of changes matter gives? There are basically two type of changes. First is physical change and second one is chemical change. And let's discuss these changes one by one. So first type of changes are physical change. So physical change, as the name indicate, in which there is change only in physical properties of matter, no new chemical compound is formed. Only physical property or appearance of matter. In this, no new chemical compound is formed. Is it clear? For example, melting of ice, like in melting of ice, water is changes from solid to liquid state, but its chemical formula remains same. Chemical formula same है तो उसकी जो basic properties है, chemical properties it remain same. Just उसकी state change हुई है, वो solid से liquid में convert हुआ, but chemical property remain same. कोई भी new compound की formation नहीं हुई. ठीक है, so it is a type of physical change. Folding of paper, is it clear? Now second type of changes are chemical change. Chemical change in which there is change in chemical properties of matter. Chemical property में change हुआ, that means a new chemical compound is formed. For example, rusting of iron. During rusting, iron in the presence of moisture
and converted into hydrated ferric oxide, which is a chemical formula of rust. So because of rusting, iron is converted into hydrated ferric oxide. केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ, डेट मीन्स कंपाउंड चेंज हो गया. अब जो कंपाउंड चेंज हुआ, कंपाउंड चेंज होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज आएंगी, नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल कंपाउंड. सो वी कैन से दैट इन अ केमिकल चेंज द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड हैज एंटायरली न्यू प्रॉपर्टी और डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओरिजिनल कंपाउंड. Is it clear? Any another example like digestion of food, burning of candle, etc. कोई भी वो चेंज जिसमें न्यू केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो, ऑल दीज चेंजेस आर अंडरगो केमिकल चेंज. इज इट क्लियर? Now the process which occur these chemical changes are named as chemical reaction. अब हमारा जो चैप्टर है that is chemical equations and reactions. So what do you mean by chemical reactions? Chemical reactions are the process which show the chemical change. इज इट क्लियर? जो प्रोसेस केमिकल चेंज शो करेगी, दैट प्रोसेस आर नेम्ड एज केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. Original substance taken are magnesium and oxygen, and the new substance formed is magnesium oxide, and the new substance has entirely different property from the original substance. ठीक है? केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस यूज हुए, एक जो हमने ओरिजिनली यूज किया और एक जो न्यू बना. सो द सब्सटेंस विच आर टेकन ओरिजिनली are named as reactant and the new compound formed are named as product. Okay, in chemical reaction there are two type of substances, reactant and product. Reactant which are taken originally and the new substance formed is named as product. Is it clear? Now there are two activities in your syllabus which demonstrate this chemical reaction. Activity 1 is burning of magnesium ribbon. When we burn magnesium ribbon in the presence of burning candle or burning splinter, presence of oxygen, then it burn with a dazzling white light and converted into a white powder which is named as magnesium oxide. And always remember, before burning magnesium ribbon, always clean it with a sandpaper. We clean magnesium ribbon with sandpaper because magnesium is a highly reactive metal, or in the presence of air, it already formed a layer of magnesium oxide over the surface of magnesium ribbon, which interfere it in burning. ठीक है? अगर हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन नहीं करते तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑलरेडी मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे जो लेयर आई है वो उसको प्रॉपर बर्न नहीं होने देगी. इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड एक्टिविटी इज मिक्सिंग ऑफ
lead nitrate solution with potassium iodide solution. For this reaction, we have to take two separate test tubes. In one test tube, we take an aqueous solution of lead nitrate having molecular formula PbNO3 twice, and in another test tube, we have to take solution of potassium iodide. Both the solutions are colorless. And when we intermix these two solutions, then we got a yellow precipitates of lead iodide and aqueous solution of potassium nitrate. ठीक है, अब इस रिएक्शन में हमने कहा that we got a yellow precipitate. So what do you mean by precipitate? Precipitate is any solid substance formed when we intermix two aqueous solution. दो aqueous solution को mix करके जो solid substance की formation होगी and the solid will settle down at the bottom, that is named as precipitate. ठीक है, precipitate का अपना पर्टिकुलर खुद का कुछ ना कुछ कलर होगा. तो जो लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, दीज आर ऑफ येलो कलर. कलर्स आपको याद होने चाहिए. इज इट क्लियर? ठीक है, सो दीज आर टू एक्टिविटीज विच डेमोन्स्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन. अब रिएक्शन के टाइम पे जो भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, लाइक इस वाली एक्टिविटी में हमने किया कि येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी. तो जो भी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपके पास ऑब्जर्व होंगे, दोज चेंजेस आर नेम्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? The changes observed during chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो भी चेंजेस ऑब्जर्व होंगे, दोज चेंजेस आर नेम्ड एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? मे बी देयर इज चेंज इन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, चेंज इन कलर, कंपाउंड का कलर चेंज हो जाए. चेंज इन टेम्परेचर, मे बी देयर इज राइज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, जो भी हमने रिसेंट एक्टिविटी में किया, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज हो. ठीक है, ऑल दीज टाइप ऑफ चेंजेस वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन. इज इट क्लियर? सो दीज चेंजेस आर नेम्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट इज chemical equation. Now what do you mean by chemical equation? जब भी केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक अगर हम बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम ये पूरी स्टेटमेंट बार बार रिपीट करें, ठीक है, तो ये काफी बिग स्टेटमेंट है. तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में आइदर वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस यूज हुआ दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, उनका नेम लिख दिया. और जो न्यू सब्सटेंस बना दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. आइदर आप इसको सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हो, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. ठीक है, बार बार पूरी स्टेटमेंट रिपीट करने की बजाय हम उसको जो शॉर्ट हैंड नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे
that shorthand notation in the form of word or in its symbolic form, that is named as chemical equation. Is it clear? The shorthand notation of a chemical reaction in the form of words or in its symbol form, that is a chemical equation. और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आप एक एरो मेंशन करोगे, वेयर हेड ऑफ द एरो इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट एंड टेल इज टुवर्ड्स द रिएक्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज balanced and unbalanced chemical equation. अब जैसे अभी हमने ये इक्वेशन की Mg प्लस O2 इज फॉर्म MgO. अब इसमें देखिए रिएक्टेंट साइड पे अगर आप मैग्नीशियम काउंट करते हो, रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम कितने हैं? देयर इज ओनली वन मैग्नीशियम. प्रोडक्ट साइड पे भी वन. ऑक्सीजन, रिएक्टेंट कंटेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम बट प्रोडक्ट कंटेन ओनली 1 ऑक्सीजन एटम. तो अगर आप हर एक एटम को काउंट करो ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका अनइक्वल है. ठीक है, तो वो इक्वेशन जिसमें ईच एंड एवरी रिएक्टेंट आर नॉट सेम ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड, दैट इज नेम्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. This is our unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation कौन सी होगी? जिसमें हर एक एलिमेंट दोनों साइड अनइक्वल. Unbalanced chemical equation in which each and every element are not same on both the side. ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट के जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल नहीं है, दैट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड कौन सी होगी? बैलेंस्ड इसका अपोजिट, जिसमें दोनों साइड नंबर हर एक एलिमेंट के इक्वल होंगे, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट फॉर्म जिंक सल्फेट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो अगर हम यहाँ से जिंक काउंट करें, जिंक रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4. द नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड. सो दिस इक्वेशन इज अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. So what is the definition of balanced chemical equation? Those chemical equations, write down, in which atoms of each and every element remain same on both product side as well as on reactant side. That is balanced chemical equation. Now what is the need of balanced chemical equation? इसकी हमें क्या जरूरत थी? ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ा? ये आपने 9th क्लास में स्टडी किया है, डेट केमिकल रिएक्शंस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है, सो टू सेटिस्फाइड
law of conservation of mass, we must have to balance our chemical equation. Is it clear? law of conservation of mass सभी satisfied होगा अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, तभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है, टोटल सम है, वो इक्वल आएगा. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. Balancing of chemical equation. To balance the unbalanced chemical equations is named as balancing. The process to balance the unbalanced equations is named as balancing of chemical equation. ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने की जो प्रोसेस है दैट इज बैलेंसिंग. तो सिंपल है, इसमें जस्ट आपको नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने हैं. लाइक बैलेंस दिस इक्वेशन Mg plus O2 is form MgO. जैसे मैग्नीशियम, नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम के इक्वल है 1 रिएक्टेंट साइड एंड 1 प्रोडक्ट साइड. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड 2, ऑन प्रोडक्ट साइड देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन एटम. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. बट अब ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरे कंपाउंड की फॉर्म में है, तो आप सिंगल ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. हम पूरे के पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई जितने भी नंबर से कर रहे हो वो उसके आगे मेंशन होगा. ठीक है, दैट बिकम इट्स कोफिशिएंट. तो यहां से ये 2 MgO. अब जब आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो आपका इक्वल हो गए 2. नाउ here प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम ऑल्सो बिकम 2. मैग्नीशियम को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड हम मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो नाउ हियर आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. 2 magnesium atom react with oxygen molecule is formed 2 molecules of magnesium oxide. Magnesium भी 2 है, reactant side भी, product side भी, oxygen भी 2. Now second, when iron react with water, then it form magnetic oxide of iron with the evolution of hydrogen gas. Balance this equation. हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो जब भी आपके पास कोई बड़ी केमिकल इक्वेशन आए तो उसमें हमें सबसे पहले जो लार्जेस्ट कंपाउंड होगा उसे बैलेंस करना है. अब यहाँ पे देखिए, आयरन रिएक्टेंट साइड देयर इज ओनली 1 आयरन एंड ऑन प्रोडक्ट साइड Fe3 आयरन एटम्स है. तो रिएक्टेंट साइड भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आयरन को. आयरन मल्टीप्लाई हो गया आपका 3 बैलेंस्ड है. उसके बाद अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 4 ऑक्सीजन एटम, रिएक्टेंट में वाटर में देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन एटम, तो हम वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, पूरा का पूरा कंपाउंड ही मल्टीप्लाई होगा. आप कंपाउंड के बीच से एक सिंगल एटम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो अब ऑक्सीजन 4, ठीक है, आयरन 3 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 एटम्स बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 4 से मल्टीप्लाई किया और पहले ऑलरेडी 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो 2 इंटू 4 8 है. रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो प्रोडक्ट साइड भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे. हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. सो दिस इज अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इज इट क्लियर? Now next is
when nitrogen gas react with hydrogen, then ammonia is formed. Or ammonia gas is formed by the reaction of nitrogen gas with hydrogen. So अब यहाँ पे आपको पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो अमोनिया इज फॉर्म्ड, अमोनिया तो आपका बना है, डेट मीन्स अमोनिया आपका प्रोडक्ट है. और रिएक्टेंट क्या क्या होंगे, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन. ठीक है, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. फॉर्मूले मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ. तो नाइट्रोजन 2, प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन 1, तो हम अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 3 इंटू 2 6, इधर 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इज इट क्लियर? नाउ ट्राई टू बैलेंस मोर केमिकल इक्वेशंस. इज इट क्लियर? Now try to balance these chemical equations. Balance these chemical equations in your notebook. Is it clear? Thank you and have a nice day.